was just introducing you. I was telling everybody that we have Mr. Abdul Manan with us, who is multi-talented. He is a model and an actor, and he has also done some good work for the Society for Willing Ways Organization Rehab Center. And he also knows photography. He's like super. And the most interesting thing about Mr. Abdul Manan is that he is starring in a movie for our depicting the Prime Minister of Pakistan, Imran Khan. And the movie will be coming out sometime soon. The name of the movie is Kaptan, Making of a Legend. And it's being directed by Faisal Aman Khan. And it's a biographical film on Imran Khan. So tell me, how was your experience? Is this your first movie, or is this the first time you done this movie? And how was your experience being depicting Imran Khan? It was an amazing, actually. Initially, it wasn't so easy to portray like Imran Khan. He's 61 or 2 years. Because when we started this movie, Imran Khan was 61, 62. In 2012, we started. It was a wonderful experience. Still, I'm hunting more. Now I've become mature even. That's right. Yes, I was asking you about... You were telling us कि आपने start किया था 2000 से modeling, and आपके साथ और भी लोग थे, and how everybody left, and health का बोल रहे थे you are responsible for your own health and looks. इस बारे में बात हुई. Exactly. जो मेरे साथ थे ना, couple of models थे जो मेरे साथ थे. मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, शायद वो पुराना मान जाए, but मुझे कि उन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा. उन्होंने ख्याल इस वजह से नहीं रखा मैसिव कि ये बहुत एक होता है mesomorph in this whole planet, ectomorph, mesomorph, centromorph. तो जो centromorph है ना, उसके लिए और कोई चॉइस नहीं है. centromorph को थोड़ा अपने आप को रिड्यूस करना पड़ता है, लीन करना पड़ता है, so एक mesomorph बनता है. So centromorph is big joint, gigantic with a hairy type of body. तो मैं शुरू से एक तो मेरी जो फिजिक टाइप है वो ऐसी है कि मैं इतनी जल्दी फैट पकड़ता नहीं हूँ. दूसरा, I can take care of myself in eating, in drinking, no alcoholic thinking, no sodas, no ठंडी चीजें में I stay away such things. बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों है. लेकिन मुझे अपनी आपको अपनी आदतों का, अपनी बॉडी की जो चीजें आपके लिए ठीक है नहीं ठीक, आपको खुद पता होना चाहिए. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कैसे आप फैट गेन कर सकते हैं, कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे आपको अपनी बॉडी टाइप रखनी है, आपका BMI क्या है. BMI आपको वैसा रखना ही पड़ेगा जैसा नॉर्मली होना चाहिए. आपकी हाइट के साथ कंपैरिजन, आपका वेट, ये एक लेवल रहना चाहिए, वो आपके लिए फिट है. उसके लिए बड़ा बेस्ट है जब आप इसको सेट करते हैं. सही. So basically your body I have to go to the gym. Even now I started even martial art. मैं बहुत देर वर्कआउट करता रहा, ट्रेनिंग, स्विमिंग, फुटबॉल, क्रिकेट भी. बट नाउ मैं बड़ा ज्यादा क्यूरियस हो चुका हूँ मार्शल आर्ट में, मिक्स मार्शल आर्ट में, MMA. मेरा फेवरेट जो चैंपियन है खबीब है, मुस्लिम फाइटर फ्रॉम दाजिस्तान, जो कि रिसेंटली ही विन द वर्ल्ड चैंपियनशिप अबू धाबी में जो एक चैंपियनशिप हुई. तो बिग फैन ऑफ हिम, खबीब नurmagomedov, जो दाजिस्तान से रशियन फाइटर. अच्छा, माशाल्लाह, that's very nice. Otherwise मेरे बहुत से दूसरे आइडियल हीरोज भी हैं, लाइक ब्रूस ली है, मोहम्मद अली है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, निकोलस केज, डेंजल वॉशिंगटन, मॉर्गन फ्रीमैन. मैं ऑलरेडी मेंटोर्स जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ. रॉबर्ट डी नीरो.
Robert De Niro. Al Pacino. Yes. Sorry. Okay. Alright. So जैसे आपने you spoke about health and everything. So because आपकी आवाज पहले it was dropping off, so I wanted कि आप थोड़ा सा if you tell us a little bit about the movie which is coming because at that time people couldn't hear you. So you are starring in the movie Captain. Making of a legend, जो कि इमरान खान के ऊपर based है, more so of his captaincy of the 1992 cricket team which led to victory. तो उसके ऊपर आप मुझे बता रहे थे कि it's not so much on his personal life, it's more of on about his captaincy and that sort of section of his life. And also you were mentioning कि ये उनकी शुरू की लाइफ के बारे में ज़्यादा है, but not his personal life. Yes. It is about his personal life with Jemima especially, because 60% movie is on Jemima's life. जैसे उनके बच्चों और वैसे भी खान साहब की जो कहने के खान साहब को जो जिससे ज़्यादा प्यार था और है भी है जमाइमा को नो डाउट, ये बात सच है। खान साहब को उनके साथ कहीं वो उनकी कॉल तो नहीं आ जाएगी, बोलेंगे अरे भाई ये क्या बोल रहे हैं सब। नहीं ये बात सच्ची है, इसमें कोई झूठ है ही नहीं है। वो दुनिया मानती है कि सबसे बेहतरीन और ब्यूटीफुल कपल है। But what made you? उनको तंग इतना किया गया, उनको इतना तंग किया गया उस बेचारी को। वो खुद कहते हैं कि वो रह ही नहीं सकी, वो चली गई। लॉबी बना दी लोगों ने उसके ऊपर, यहूदी लॉबी का ब्लेम लगाना शुरू कर दिया। तो बड़े खूबसूरत लाइफ गुजार रहे थे। उनको सारी जो ताने सुनने को मिल रहे थे कि यहाँ पे ये कोई एनजीओ चला रही है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ, तो उस वजह से वो चाहती थी कि खान साहब जो है यूके में आके लाइफ अपनी गुजारे। लेकिन खान साहब ने प्रायोरिटी दी कि नहीं, मैं अपने कंट्री को, मैं अपने पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ सकता। तो इट्स अ साइन ऑफ ट्रू पैट्रियट पर्सन, जो दिल से मोहब्बत वतन होता है वो नहीं छोड़ता। मैं खुद अपने कंट्री से, मुझे आई लव माय कंट्री, मैं चाहता हूँ मैं अपने कंट्री के लिए कुछ करूँ। तो ये जो जज्बा है ना, ये खान साहब के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे बेहतरीन जो मैसेज है इस मूवी के अंदर, इट इज यूथ के लिए जो मैसेज है, स्ट्रगल वेरी हार्ड और नेवर गिव अप। उन्होंने गिव अप नहीं किया, चाहे परेशानी उनकी डोमेस्टिक लाइफ में आई, उनकी परेशानी बाहर से भी आई। इवन आप क्रिकेट में देख लें, उनके मोहसिन खान जो कजन थे वो इसको बहुत तंज करते थे। उनके रिलेटिव कहते थे तुम बैट्समैन नहीं बन सकते, तुम बॉलर नहीं बन सकते। बट ही प्रूव ही बिकम द ऑलराउंडर। वो दुनिया का बेहतरीन नंबर 1 बॉलर भी बने और नंबर 1 कैप्टन भी बने और बैट्समैन भी। ही प्रूव हिमसेल्फ एक्चुअली। किसी भी जगह देख लें आप, इवन आप यहाँ पे देख लें, आजकल क्राइसिस जरूर है पाकिस्तान के अंदर, बट ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर फाइनली। उनकी 22-23 years की स्ट्रगल है, फाइनली ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नाउ ही स्ट्रगलिंग सो हार्ड बिकॉज जहाँ पे करप्ट माफिया था हर जगह, अभी भी स्टिल माफिया इज वर्किंग, बट ही इज फाइटिंग। ही इज अ ग्रेट फाइटर एक्चुअली। ही इज अ फाइटर डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। His life is that. मैं उनको फाइट ही करते देख रहा हूँ। I mean, still is fighting with these mafias, these vagabonds जो बदमाश हैं। इवन यहाँ पे वो हर तरह से उनको करते हैं, ललकारते हैं, तंग करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। सही। And I agree with you because being a business person and coming to and working in Pakistan myself this past year, I have also come across a lot of strange things over there. तो ये आप सही कह रहे हो कि मुल्क के लिए करना चाहिए और बिल्कुल हम सब नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अच्छा, I would like to ask you also about your work you worked as a manager for Billing Ways Organization Rehabilitation Center. It also goes sort of with जो आप कह रहे थे कि सेहत का ख्याल रखना and not being into drugs, not into anything else से एक इंसान जो है अपने करियर को प्रोलॉन्ग कर सकता है, अपने लुक्स को, अपने हेल्थ को, अपनी लाइफ को।
प्रोलॉन्ग कर सकता है। तो इसमें आपका विलिंग वेज ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या आपका एक्सपीरियंस रहा और आपने कितना क्लोजली ड्रग एडिक्शन को देखा और ड्रग एडिक्ट्स के साथ आपने काम किया, उनको हेल्प किया, तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं पूछना चाहूंगी। जस्ट अभी आई थिंक देयर इज सम डिस्टॉर्शन एंड disconnection, but I think he will be back very soon. I'm back. Yes. So I was asking you about Willing Ways organization में जो आपका जो रोल रहा है उसमें आपने जिस तरह से ड्रग एडिक्शन को करीब से देखा होगा, हेल्प की होगी लोगों की, उसके बारे में कुछ हमें बताएं। I've been there 5 to 6 years as a manager और मेरी एक तो ड्यूटीज ऐसी थी 007 में जॉब थी। I had to keep watching the managers, CEOs, जो डायरेक्टर्स हैं उनको छुपके मैं देखता because I have to report डॉक्टर सलाकत जो विलिंग वेज के CEO हैं। तो मैं उन्हें it's ओपन जॉब, सबको पता था कि he is watching, सबको पता था he has to report डॉक्टर सलाकत। तो ये कोई लुकी छुपी नहीं होती, बाद को लुक छुप के काम करते हैं ना, लुक छुप के किसी की नोटों की चीजें बता देते हैं। नो, आई वाज एन ओपन 007 जॉब, एक हिटमैन की जॉब थी। सब मेरे खिलाफ भी बड़े थे, ये मैंने बहुत से बड़ा कुछ सीखा। बहुत खिलाफ थे मेरे लिए, कोई ना कोई ढूंढते रहते थे कि इसको कहाँ पे इसे कहीं इसको अपनी पड़ जाए, कोई इसको इसका परेशान करे। इट वाज इंटरेस्टिंग जॉब। फिर ऐसा बहुत से लोग मैंने पकड़े भी। एक मैनेजर था, वो जहाँ से कैश ले जाता था वहाँ के बैंक के अंदर जमा कुछ और कराता था, यहाँ के रिसिप्ट दिखा रहा था, मैंने वो बैंक कैश करवा दिए। तो यहाँ से ये मैंने बहुत से तरीके देखे। यस, तो ये वो चीजें हैं जो कहते हैं इंसान कभी चोर से भी ना दोस्ती लगा के रखनी चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप वो तरीके सीखते हैं कि अच्छा इस तरह से भी चोरियां होती हैं, इस तरह से भी फ्रॉड किया जाता है। आपको बहुत जरूरी है कि आप हर तबके के हर बेहतरीन इंसान से ना यारी दोस्ती जरूर रखें, किसी के साथ बिगाड़े मत। ये मेरे बड़े जो है मुझे सिखाते हैं। इवन शोबिज़ में भी मैंने बहुत से कम लोगों से मैंने बिगाड़ी है, मेरी ज्यादातर लोगों से दोस्ती है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, कैसे भी हैं। इट इज देयर ओन कैरेक्टर कि वो कैसे बाहर हैं, लेकिन मैं उनके साथ बड़ा फ्रेंडली रह के बड़ा कुछ सीखा है। आई कीप लर्निंग एक्चुअली। मैं वो होता ना पानी का ग्लास कभी भरा नहीं रखा, मैं हमेशा खाली रख रहा, उसे कुछ ना कुछ सीखता जाऊँ। आई कीप लर्निंग स्मॉल थिंग्स फ्रॉम एवरीवन, ईच ऑफ एवरीवन। इवन मेरे जो बड़े कैरेक्टर्स हैं, लाइक मेरे जो आइडियल हीरोज हैं, उनसे थोड़ी चीजें जरूर सीखी है। ब्रूस ली से एंगर सीखा है, कहाँ पे एंगर रखना है आपने, उसको कैसे आप पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। मोहम्मद अली से बहुत सी चीजें सीखी हैं, बिकॉज जब वो थकता है फिर वो काउंटिंग शुरू करता है। तो इट इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप टायर्ड होते हैं तो वहां से काउंट करना शुरू करें। इट्स अ ग्रेट थिंग, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। जब आप टायर्ड हो जाए किसी भी काम करते करते, तो you don't have to give up. You have to keep moving. Then you can restart again. सही ये आपने बहुत अच्छा कहा कि इंसान जो है वो हर किसी से सीख सकता है और हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ निकालना या समझना या सीखना, यही एक ग्रोथ की निशानी है, एक ऐसे पर्सन की निशानी है जो कि लाइफ में कुछ करेगा, बिकॉज वो हमेशा ग्रो कर रहा है। एंड यू आर वेरी राइट व्हेन यू से दैट कि हर किसी से आप कोई ना कोई चीज सीख सकते हो, लेकिन वो उसके लिए वो माइंड चाहिए, वो जो आप में है। मे बी इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह आप आगे बढ़ते रहेंगे। दैट इज डेफिनेटली समथिंग। बिल्कुल एक्चुअली आप शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का किसी भी सिचुएशन में। आई एम स्टिल वर्किंग, मैं बड़ा खुश होता हूँ। स्टिल पीपल लाइक मी टू सी इन देयर ड्रेसेस, in the movies or commercials or drama में भी। I really feel proud that Allah Ta'ala का शान है ये कि अभी भी still people think that I have to be on the screen। और मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि हमारी जो कमर्शियल और दूसरी जो फैशन इंडस्ट्री है उसको और ग्रो करना चाहिए। Quite a few people are working so well। हमारे पास कंटेंट राइटर जो है वो बड़े
बड़े कम है। और मैं चाहता हूँ ये खुद से कि बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं, और मोस्टली लोग मैं देखता हूँ जब कि ये कॉपी करते हैं तो कॉपी तो मैं पकड़ लेता हूँ, बिकॉज आई लव वाचिंग हॉलीवुड मूवीज। तो जो लोग आप किसी दूसरे कंटेंट से चीजें चुरा के अपने अपने अंदर डाल लेते हैं अपनी स्टोरी के अंदर, तो पीपल जो जो ऑलरेडी देख रहे हैं वो पकड़ लेते हैं कि यू स्टील दैट सीन फ्रॉम दैट मूवी। सही 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 स्टील प्यार। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में बहुत काम की जरूरत भी है, और आई थिंक उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, बिकॉज लाइक अदर कंट्रीज जो अपने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अप्रिशिएट करते हैं या आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करते हैं, आई थिंक हमारे यहाँ उसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो इसलिए फिर वो आगे बढ़ना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मैं चाहता हूँ वी शुड कीप हंटिंग द न्यू टैलेंट। अब मैं रैंप शोज नहीं करता, बिकॉज ये न्यू कमर्स का काम है। आई लुक फॉरवर्ड, मैं कुछ और चीजें देख रहा हूँ, मेरे ड्रीम्स कुछ और है। आई लुक फॉरवर्ड बियॉन्ड द इमेजिनेशन, मैं कुछ और बनना चाहता हूँ। I don't want to do the initial things ये मैं शुरू में करता रहा, मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ये न्यू कमर्स का काम है, उनका हक बनता है कि वो आगे आए और बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बहुत अच्छी चीज। देखिए जैसा इंसान सोचता है, या ट्रू जी यस गो अहेड। नहीं आप बोले प्लीज। तो मैं अब चाहता हूँ न्यू कमर्स जो टैलेंट इनके अंदर है, वी हैव टू हंट, क्योंकि आप जो इंडिया के रास्ता है वो तो हो गया क्लोज। बड़े लोगों को बड़े बड़े ग्रीन बड़े बड़े खाने खाते, मैं इंडिया जाऊंगा वहां जाके ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा। मैं भी सोचता था यार इफ आई गॉट अ चांस फ्रॉम इंडिया आई कैन बी द बॉलीवुड हीरो। अब आगे सारे सब ना अब लोगों को अपने अपने कंट्री के जो जो टैलेंट है ना उसकी कदर होना शुरू हो गई, क्योंकि अब जो वहां भागे हुए थे वो भी वापस आ गए। ठीक है, ये अली जफर था, ये हमारा सिंगर था, जो जो भी थे वहां से उन्होंने निकाल के बाहर फेंके जाए अपने कंट्री में। तो ये पहले क्यों नहीं थे? मेरा इनके साथ हमेशा ये जो रहता है, जो बड़े बड़े मगरमच्छ यहाँ बैठे हुए, इन्हें चाहिए कि अपने अपने कंट्री के टैलेंट को आगे प्रमोट करें, अपने कंट्री में अपना ही टैलेंट को आगे लाएं और दूसरे लोगों को मौका भी दें। बड़ी स्मॉल सी इंडस्ट्री लगती है, छोटे थोड़े से चंद लोग सिर्फ काम करते हैं इंडस्ट्री में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। माशाल्लाह इतना पोटेंशियल है, और यहाँ पे तो रोज नए नए आर्टिस्ट पैदा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। हमारे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट आई थिंक कि वो डायरेक्शन एंड पॉलिशिंग की जरूरत है। और ये है कि भाई जो ऊपर आना चाह रहा है आप उसको ऊपर आने भी दो, बिकॉज आई रियली फील कि वहाँ जो मेन जगह है वो सर्टन लोग, जैसे आपने कहा कि आपने मॉडलिंग से स्टार्ट किया, बट अब आप सोचते हैं कि दूसरों को भी आप भी काम करें और आप भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कोई और आ रहा है तो उसको भी चांस मिले। उसी तरह से जो बंदा ग्रो करता है वो इसी तरह से होता है कि वो उसको पता है कि उसकी जगह हमेशा वो खुद बनाएगा और वो बेहतर से बेहतर बनाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज आई डिड फील कि जो बड़े बड़े पहुंच गए जहाँ बड़े बड़े वो फिर किसी और को एज अ थ्रेट लेते हैं जो न्यू टैलेंट है, तो न्यू टैलेंट तो बेचारा का कोई चांस ही नहीं रहता। वो ऐसे है, वो क्यों होता है? क्योंकि उनको अपने अंदर कमी खुद फील होना शुरू होती है, या ये मुझे काट देगा, ये मेरे से आगे निकल जाएगा, और वो हो जाता है। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही होता है। रिमेंबर दैट, आप किसी चीज से डर जाए, आपको कोई खौफ बैठ जाए ना कि अभी मेरी फलां चीज का किसी को पता ना चल जाए, वो डेफिनेटली पता चल जाएगी। आप जिस चीज से बच रहे थे वही होगी। राइट। जितने भी जब इंसान किसी चीज से माला माल होता है ना, तो वो फिर दूसरों को देख के खुश होता है। वो चाहता है कि ये भी यार मेरे से सीखें, यहाँ ये आगे आए, आगे बढ़े अपने तरीके से, खुद से ये चीजें। क्योंकि somehow you have to only show you the door। कुछ लोग आपको सिर्फ रास्ता दिखाते हैं और आपको डोर दिखा देते हैं कि ये रास्ता है और ये डोर है। You can knock the door and you have to go your own self। बस, तो बाकी तो आपने अपना टैलेंट ही आगे लेके जाना है। बिल्कुल आई थिंक वाकई में उसमें ये लोगों की इनसिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। आपको अपने आप को इतना पॉलिश करना चाहिए कि आप में जैसे आप में कोई वो इनसिक्योरिटी नहीं है, यू नो व्हाट यू आर वर्थ, व्हाट यू कैन डू। तो यही चीज होनी चाहिए सब में, ओल्ड टैलेंट में भी न्यू टैलेंट में भी, कि आपको अपना वर्थ पता हो, आप इतने पॉलिश अपने आप को अपने करते रहे हो और कर रहे हो कि आपको पता हो कि आप हमेशा आगे ऊपर जाएंगे और आपको किसी से इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, जो तो हमारी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा है।
तो है बड़े इश्यूज हैं इंशाल्लाह होपफुली आई थिंक जैसे अगर आप जैसे लोग हैं एंड अदर पीपल हु वांट टू मेक थिंग्स बेटर अपने ऊपर खुद काम करते हैं तो मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं बोल लेता हूँ, मेरे दिल में जो होता है ना मैं बोल देता हूँ। लाइव भी जाता हूँ, लाइव शोज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफी किए, वो भी बड़े अंदर से खुशी होते हैं। मैं तो भाई मकान बेचने का इशारा भी करते हैं, मकान सारी बातें नहीं करनी। सही बात है तो मैं बोल देता हूँ। सही कहते हैं ऐसी होना चाहिए एक्चुअली। अच्छा एक बात है ना, दिल साफ होना तो फिर आप बोल देते हैं, फिर आप अपने एक्चुअली ये है, दिल साफ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, there was one more thing I wanted to ask you about before wrapping up. It was about the overworking वाला part of the film industry जहाँ सब आपको खींच रहे होते हैं and उसका जो अच्छा देखने वाले को व्यूअर्स को आई फील नहीं पता होता कि ये पर्सन इंडस्ट्री में जो है वो कितना ओवरवर्क हो जा रहा है। वो एकदम बोलते हैं जैसे मैं माय मदर से टू सी सम न्यू मॉडल और सम न्यू मॉर्निंग शो होस्ट और सम न्यू एक्ट्रेस समवन कि शुरू में वो बड़े फ्रेश आते हैं, 1 ईयर में उनका बुरा हाल ना, चेहरे पे थकान और इतना वो हो जाता है। तो वो सब समझ नहीं आता था। अच्छा, आप वेस्टर्न का भी सुने तो वेस्टर्न में दे ऑलवेज से कि इनको वो हो गया क्या कहते हैं एग्जॉस्शन। अब वो उस वक्त समझ नहीं आता था एग्जॉस्शन होके वो बेहोश क्यों हो गया। अब जब मैं इस फील्ड में आई, हालांकि आई एम थोड़ा टीवी में जो भी एंकरिंग में, बट आई फेल्ट कि वो वाकई में कभी कभी इतनी चीजें हर तरफ से आ रही हैं, पीपल वांट यू एवरीवेयर, कि एग्जॉस्शन का तो किसी को पता ही नहीं कि वो कितना एनर्जी ड्रेन हो जाता है। उसके बारे में आप क्या कहें? ये डेफिनेटली हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के साथ ज्यादा हो जाता है जो सिगरेट भी पी रहे हैं, जो बाकी लवाजमात भी पूरे कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादा हो जाता है। अगर तो आप कोई दूसरी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जिसमें सिगरेट पहले ले लें, मोस्टली लोग शोबिज़ में सिगरेट पीते हैं और बड़े शांत से और समझते हैं कि शायद इट्स अ पार्ट ऑफ द शोबिज़ लाइफ। ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे क्वेश्चन करते थे लोग, तुम नहीं कुछ पीते, तुम क्यों नहीं पीते? बिकॉज मेरी तो ट्रेनिंग ही बड़ी जबरदस्त हुई है रिहैबिलिटेशन सेंटर से, आई गेट ट्रेन माई सेल्फ फुली। तो मुझे तो पता है कि इट्स एडिक्शन, इट्स सिगरेट तो सादा होता ही नहीं। सादी तो वो चीज होती है जिसमें से ये इसको सिगरेट को यूं देखे तो नजर आए आपको, इसको कहते हैं सादा। तो सादा तो होता ही नहीं सिगरेट। तो जो तो सिगरेट पीता ना उसकी तो शामत आई। अगर वो काम कर रहा है, वो थोड़ा सा काम भी करेगा, उसको स्ट्रेस फील होगा, वो फौरन उसके चेहरे से नजर आ जाएगा ही इज नॉट फ्रेश। वो फौरन उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, वो आपको गिरा हुआ नजर आएगा। तो जो नेचुरल डाइट और नेचुरली अपने आप को, एक्चुअली आपका स्टेमिना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू सुपर फिट योर कार्डियो। उसके लिए आपको यू हैव टू रन, ब्रिस्क वॉक, ट्रेनिंग, एक्सरसाइज। ये ऐसी चीज है, हार्ट एक ऐसी चीज है जो कि आप उसको तेज करके ही नीचे लाएं तो वो एक्सरसाइज है उसकी। हार्ट ये नहीं हो सकता आप थोड़ी देर हार्ट को बंद करके एक साइड पे रख दें तो वो उसको रेस्ट मिल जाए और फिर लगा लें यहाँ पे। नो, हार्ट की एक्सरसाइज यही है, यू हैव टू पंप अप एंड देन स्लोली पंप डाउन। ये उसकी एक्सरसाइज है और उसके लिए आप ट्रेनिंग करते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, यू हैव टू रन, हाइकिंग, जो भी एक्सरसाइज हैं इसकी बहुत सी एक्सरसाइज हैं। तो जिनका स्टेमिना स्ट्रॉन्ग है दे कैन कॉप एनी सिचुएशन। मैं बात का एक दो काम तो इकट्ठे आ जाते, समटाइम्स मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और इसमें आप थोड़ा सा गैप ले लेते हैं तो आप कर लेते हैं। इतना के आप नहीं कर पाते। आप देख रहे शाहरुख, एक ही दिन में उसकी कितने बाकी असाइनमेंट्स होती हैं, वो करना होता है। हर चीज उसकी टाइम से मैनेज है। आप उनके इंटरव्यूज देखिए, आप उनकी एक दफा कोई एक प्रोग्राम था जिसमें वो सारा दिन दिखा रहे थे कैसे he is so busy in his whole entire life every day। तो आप देखें, इन लोगों से सीखें, सीखने को बहुत ही मिलता है। ये जो हॉलीवुड के बॉलीवुड के जो सुपरस्टार्स हैं, you have to see them, you have to watch them closely, कि कैसे अपने आप को फिट रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, लाइक अपार्ट फ्रॉम ड्रग्स और ये वो, हमें जरूरी नहीं है नेगेटिव चीजों को पहले पकड़ लें। नो, you have to choose wisely। हमें बेहतरीन चीज चुननी चाहिए इनमें से। कहते ना, बाद लोगों को कौवे की आवाज बड़ी बुरी लगती है, मैं कहता हूँ forget the voice, love the bird। हाँ, सही से प्यार करना चाहिए बजाय इसके हम उसकी आवाज को तनकीद का निशाना बनाए।
We have to love the world actually. राइट राइट यू राइट हर चीज में जो उसका पॉजिटिव साइड है वो देखना बहुत जरूरी है। हर चीज की नेगेटिव निकालना बिल्कुल गलत चीज है, सही कह रहे हैं आप। और वही बात है जो हेल्थ का सही ख्याल रखते हैं, दे यू नो दे अवे फ्रॉम सिगरेट एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये जाहिर है कि उससे बहुत इफेक्ट होता है। और वही बात है कि मेरा ख्याल है टाइम से आपको समझ आता है कि किस तरह से आपको मैनेज करना है एवरीथिंग, और किस तरह से हर चीज को आपने अपने लिहाज से उसको थोड़ा सा डायरेक्ट करना है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जब विलिंग वेज पे काम कर रहे थे तो आपका उन लोगों पे देखना, आप देखते थे मतलब जो लोग वहाँ एडमिट थे उनके अलावा भी लोगों को आप लोग सर्वेलेंस करते थे कि ये जो है जैसे चोरी वाला। Yeah, exactly. I work as a surveillance as well. I work as a keep watching the doctors who's not taking care of the patients, who has bad behave or misbehave with the patients. Addiction patients जो है बड़े sensitive होते हैं और ये बड़े clever होते हैं because sometimes वो करते कुछ है अंदर होता कुछ है। समटाइम्स उन्हें अंदर ही बैठ के मेडिसिन खाने की आदत पड़ जाती है छोटी छोटी चीजों की, लाइक ऐसी खांसी की जो कफिंग को जो सिरप्स हैं वो बड़े मोहतात होके देते हैं। और डॉक्टर सदाकत जो है विलिंग वेज इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर एडिक्टेड पेशेंट्स, जो यहाँ पे बेहतरीन हॉस्पिटल, मैंने उनसे बहुत से लोग सीख के गए, उन्होंने अपने हॉस्पिटल बना लिए। बट मदर जो हॉस्पिटल है इट वाज सदाकत क्लिनिक, नाउ विलिंग वेज के नाम से, बट मैंने वहाँ से बहुत चीजें सीखी हैं। I learned even the book 7 Habits of Highly Effective People, or Think Big and Grow Rich, You Become Rich. Think Grow, ये भी एक बुक है स्टीफन हॉकवी की। वो आपने मेंशन बुक की थी अपने बायो में कि वो आपको बहुत पसंद है, वो आपको भी है। एक और बुक भी है, there is a book शाबाश तुम कर सकते हो। I love this dialogue. शाबाश जो है ना देने वाले बड़े कम है। I love this. बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे शाबाश तुम कर सकते हो। अच्छा, अगर मुझे कोई और नहीं ना मिलता तो मैं खुद को ये कर लेता हूँ, ये थप्पी जो है मैं खुद को कर लेता हूँ। शाबाश, गुड जॉब। It's very important because वाकई में there is so less people जो कि आपको प्रमोट करते हैं या बोलते हैं कि yes you can do it, you should do it, you should try your best, you should work, because वही बात है, आदमी वही आगे बढ़ता है जो कोशिश करता है, और कोशिश करने से इंसान आगे बढ़ता है। बिल्कुल ये सही बात, और हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और ये चीज आपने सही है, हमारी सोसाइटी में मेरा ख्याल है कि हमारा आज का मैसेज होना चाहिए कि प्लीज नेगेटिव मत सोचें, लोगों को प्रमोट करें, उन्हें बुरा मत निकालें बैठ के, खुद भी पॉजिटिव रहें और अच्छे की तरफ वर्क करते रहें, अपने ऊपर काम करें और दूसरों के ऊपर भी तनकीद की जगह उसको प्रमोट करें। दूसरों को प्रमोट करने से आप खुद आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। सही बात है। अच्छा, और ऐसे ही है, मैंने बेशक काम स्लो किया है, थोड़ा किया है, बट बड़ा क्वालिटी का किया है। और दैट्स व्हाई मैं कहते हैं व्यवस्था है शजर से उम्मीदें बाहर रख, मैं कभी गिव अप नहीं किया। आप 20 साल होने, 20 साल से ऊपर हो गए शायद, 20 साल तक कोई बड़े बड़े मुझे मिले हैं, पापड़ मिलने वाले बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े पीछे से आगे निकल गए हैं। अब आगे जो पीछे से आगे आ रहे हैं आपसे, वो भी मैं देख रहा हूँ अब नहीं नजर आते। तो ये बड़ा आपको बड़ा सब्र रखना पड़ता है आपको। अल्लाह ताला ने आपको जो इज्जत देनी है वो मिल के रहेगी। डोंट वरी, ट्रस्ट ऑन गॉड, बट लव योर गॉड। अपना ख्याल तो रखना पड़ता है। बिल्कुल, अपना ख्याल तो रखना पड़ता है। सही। वेल, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर डूइंग। एक और सिर्फ चीज मैं बता देता हूँ कि लक जो है ना काम तभी आती है जब आप उसके लिए तैयार हो। लक works well when you prepare yourself. जब आप अपनी तैयारी रखते हैं तभी आपको कोई लक काम करती है। खाली लक का क्या करेंगे जब आप तैयार ही नहीं है उसके लिए। बात का तो ऐसा काम आ जाता है कि आप मेंटली तौर पे तो तैयार नहीं है, काम आ गया वो उस काम के लिए आप पहले से तैयार हो, तो ये इसको कहते हैं लक। सही आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि आपने अपने पे काम करके उस चीज के लिए रेडी रहना है जिस लक का ये आप वेट कर रहे हैं कि आप वो कर भी सकते हैं कि जब वो आपको एकदम से कोई एंकर की जॉब मिल जाए, तो जब आप कभी किसी से बोले ही ना हो, आपने कभी किसी के सामने इस तरह से बात ही ना की, तो जब वो
वो काम मिला है तो उसके लिए तैयार नहीं, तो वो 100% राइट। तो उसमें आपको अपनी तैयारी जो है वो पूरी रखनी है, बिल्कुल। तो अच्छा, अब आपके ख्याल से वैसे मूवी कब रिलीज होगी? कप्तान जो है जिसमें आपने इमरान खान का रोल किया है, हम कब उम्मीद लगा सकते हैं इस मूवी की रिलीज डेट? थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया है। हाँ जी, मैं पूछ रही थी तो कब आपकी मूवी का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड अबाउट कि कब मूवी रिलीज होगी? मैं हर साल में ये नेक्स्ट ईयर करते रहता हूँ। लोग कहते हैं अच्छा चलो नेक्स्ट ईयर में कई सालों से नेक्स्ट ईयर कर रहा हूँ। अच्छा। असल में मूवी जो है मुझे डायरेक्टर से बड़े गिले हैं, लेकिन डायरेक्टर माशाल्लाह ही वर्क सो वेल एंड सो हार्ड। अब वो इवन यहाँ पे नहीं है, यूएसए में है, इज इन यूएस। तो वो वहां से यहाँ से डायरेक्ट करते थे। हमने थोड़ा सा स्पेल और किया है, जिसके ऊपर और काम की, लेकिन आई एम श्योर मूवी जो अब बन गई ना, तो people gonna love it. It's going to be a blast in film industry, fashion industry, इंशाल्लाह आप देखिएगा। इसमें यूथ के लिए बड़ा पंचिंग मैसेजेस हैं, बहुत जरूरी है। हमारी यूथ को पॉपुलराइज करने वाला बहुत कम लोग हैं। मोस्टली लोग, मुझे बड़ा दुख होता है जब वो सिगरेट पी रहे हो या वो किसी नशे में लग गए हो, मुझे बड़ा दुख होता है। पता नहीं क्यों, मेरे कुछ लगते तो नहीं है, बट आई फील पेन कि इनको यही एनर्जी अपनी अगर किसी और साइड पे यूज करें तो ये आज कहीं 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 हो। तो चाहता हूँ कि हमारी यूथ वो कुछ अपना आप दिखाए जो कि पूरी दुनिया माने। सही। एंड आई थिंक दैट्स योर मैसेज कि आप चाहते हैं कि यूथ जो है वो अपने पोटेंशियल को बेसिकली जो है देखे और उसको यूज करे। हमें देखे इंसान, इंसान आता है, अगर वो कुछ बेहतरीन कुछ डिफरेंट करके नहीं जाता तो फिर आपके आने का कोई फायदा नहीं। देयर इज नो लाइफ विदाउट अ पर्पस। यू हैव टू फाइंड योर पर्पस। पर्पस बड़ा इंपॉर्टेंट है। विदाउट पर्पस इफ यू लिव लाइक ए नॉर्मल लाइफ, एवरेज पर्सन, आप दुकानदार को देख लें, आप टैक्सी ड्राइवर को देख लें, रिक्शा वाले को देख लें, आपको लगेगा कि ये रिक्शा ड्राइवर ही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको उनको देख के लगेगा ये सारी उनकी थॉट्स, उनका माइंड सारा रिक्शा ड्राइवर वाला ही होता है। अगर आपने तो नॉर्मल बनना है, नॉर्मल पर्सन की तरह जिंदगी गुजार के चले जाना है दुनिया से, सो इट्स नॉन ऑफ यूज, किसी के काम की नहीं है। यू हैव टू यूज पर्पस। जो आपका पर्पस है आपको फाइंड आउट करना है। हर इंसान में अल्लाह ताला ने क्वालिटीज डिफरेंट रखी हैं। यू हैव टू फाइंड पर्पस। बिल्कुल ये आपने सही कहा है कि एक मीडियोकर अगर आपको जीना है किसी को तो फिर ठीक है, but if you don't want to be mediocre, you should not be mediocre, and there is so much potential। और वाकई में वो पूरा आप किसी शख्स को देख के उसके पूरा थॉट सब वही उसको लीड कर रहा होता है to where he or she is। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। and with that it was wonderful। असल में मैं बड़ा गौर से देख रहा था लोगों को। हम नॉर्मल लाइफ में दोस्तों को, दूसरे लोगों को, इवन कोई मांगने भी आता है, आई डू कीप वाचिंग क्लोजली, बड़ा बारीक से मैं पूछता हूँ कि अच्छा तुम कहाँ से, मैं उनके कैरेक्टर नोट कर रहा था। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू वॉच एवरी कैरेक्टर सो क्लोजली। तो आप खुद सीखते हैं कि यार ये अच्छा, कहीं कुछ लोग दिल से बोल रहे होते हैं, कुछ वाकई दुखी होते हैं, कुछ बनावटी भी होते हैं। आप कुछ लोगों को गौर से देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कुछ लोग वाकई तकलीफ में हैं। और कुछ लोग जो है वो ऐसा होता है। तो आप अब सही है। बताइए दोबारा, मुझे आवाज सही तरह नहीं आई थी, सॉरी। नहीं, मैं वही आपकी बात को आगे लेके चल रही थी कि वो आप सही कह रहे हैं कि कुछ लोग वाकई में दुखी होते हैं और कुछ लोग बस एक्टिंग कर रहे होते हैं रोने की, बस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं चाहिए होता और उसको सॉल्व भी करने की कोशिश करना भी नहीं चाह रहे होते। दे जस्ट वांट कि बस टाइम पास। तो उस हाल में जाहिर है आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एंड आगे बढ़ने के सारे फॉर्मूलाज आपको आज अब्दुल मन्नान ने बता दिए हैं उन लोगों के लिए जो कि
सीखना चाहते हो, अपना लाइफ में जो है आगे बढ़ना चाहते हो, और हम we're going to look forward to the movie। इंशाल्लाह जब आएगी मूवी तो हम सब इसके लिए बैठे हैं देखने के लिए। आप डायरेक्टर को बोले जल्दी करें, फिनिश करें ताकि हम सब देख सकें। इंशाल्लाह। आपकी सोच होगी, हम कितने, इवन जो सईदा इम्तियाज है मेरे साथ, जिसने पोर्ट्रेट जमाइमा खान, वो उसने भी बड़ी स्ट्रगल की है, वो बड़ा पुश करती रही है डायरेक्टर को, मुझे मनान ये करो, मनान सीधे हो जाओ, ठीक हो जाओ, वो बड़ा मोटिवेट करती है। तो डायरेक्टर को भी लागत करना कि पास करें, आप कितनी मूवी बनानी है और करें, काम शुरू करें, फिर हमने किया भी, तो उसकी बड़ी एफर्ट है। चलिए, that's very interesting। Anything else आप बोलना चाहेंगे before we end the show to your viewers or anybody? Yes, sure। आजकल जो कोरोना टाइम चल रहा है इस वक्त, इसमें बहुत से लोग डिसहार्ट हो चुके हैं, और एक तो हमें दूसरे साथ वाले हमसाए, अपने दोस्त अब थोड़ा सा मोटिवेट करें, कीप लुकिंग, कि देखें किसी को कहीं जरूरत है आपकी हेल्प की। अगर आप हेल्प कर सकते हो देन गो अहेड, अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये जो थोड़ी सी किसी को हौसला अफजाई है, थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, वो जरूर करें, क्योंकि इस वायरस की वजह से बहुत से लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं एक दूसरे से। इट्स लाइक ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन, इंसान दूसरे इंसान से डरना शुरू हो गया। तो बिल्कुल अल्लाह ताला का जरूर आप नमाज पढ़ें, ये बड़ा बेस्ट वे है आप इससे बचने का, नमाज पढ़ना, क्योंकि जिससे आप वजू करते हैं तो वजू से आप काफी हद तक प्रोटेक्ट हैं। ये वायरस इज इन दी है, हवा में है, जहाँ भी है, इंसानों से ट्रांसफर के, ये बात तो सच है। आपने बचना भी है, वो तरीके बता भी दिए गवर्नमेंट ने, हर तरह से लोग अपना बचाव कर भी रहे हैं। तो इट्स बेटर वी शुड टेक केयर ऑफ ईच अदर, हमें थोड़ा सा ख्याल भी रखना है, दूसरे लोग जिनको नहीं भी पता उनको बताएं, और किसी की हेल्प कर सकते हैं फौरन करें प्लीज। चाहे वो फूड पॉइंट में, चाहे किसी के खाने के, बाद लोग मुंह से कुछ नहीं कहते लेकिन उन्हें पेट प्रॉब्लम तो है, तो ऐसे लोगों को फाइंड आउट करें, प्लीज डू हेल्प ईच अदर। थैंक यू जी। हेल्प ईच अदर इज अ वेरी गुड समथिंग जो कि हमारे मुल्क में सबको बहुत जरूरत है टू नो कि जस्ट डोंट हेल्प योरसेल्फ, हेल्प द अदर पर्सन आल्सो। सिर्फ डर के घर में डर के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, प्लीज हेल्प अदर्स। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत अच्छा रहा अब्दुल मन्नान, आपसे बात करके बहुत मजा आया आज, एंड होप टू सी यू फ्लरिश। आप आगे इंशाल्लाह और बढ़ें और कामयाब रहें, और इंशाल्लाह होपफुली सम पीपल को आइडिया हुआ इस तरह से वो भी कामयाब हो सकते हैं लाइफ में, क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए क्या नहीं। एंड वी विल बी वेटिंग फॉर द मूवी, एंड इंशाल्लाह जब वो आएगा तो देन enjoy it in the cinemas। Same here, my pleasure। It's really lovely talking to you। आप आगे पढ़ते रहे माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप जैसे लोग जो हैं दूसरे कंट्री में बैठ के और ऐसे प्रोग्राम को अरेंज करते हैं और अपने टैलेंट को, अपने कंट्री के टैलेंट को भी प्रमोट करते हैं। It's good, it's very good। I believe in promoting। भाई हम अपने मुल्क को नहीं प्रमोट करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। ये हमारे लोग समझते नहीं है। Yeah, true, that's true। Thank you so much। सही बात है, exactly। तो you are so much blessed। ये निशानी होती है blessed लोगों की, जो दूसरे लोगों को प्रमोट करते हैं। Yes। और वही लोग आगे भी जाते हैं जो दूसरों को प्रमोट करते हैं। So we're going to promote each other, being from Pakistan, and we love our country, so why not? Anyway, everyone, thank you so much। I will wrap up the show। It's been great। I hope our viewers enjoyed it also। And थोड़ी सी डिस्टॉर्शन शुरू में हुई थी, but then we covered it later on। तो ये है कि सारी बातें मेन हमने कर ली, तो खुद भी सब हो गया जी। चलिए जी अब्दुल मन्नान, थैंक यू सो मच। ओके जी, खुदा हाफिज़।